A very good morning to all of you and welcome you all on this workshop of Business Model Canvas, which is organized by Institutions Innovation Council and Yash Business Incubation Center of Mula Education Societies, Arts, Commerce and Science College, Sone. So for this session, we have with us Principal Dr. Shankar Lavre sir, Vice Principal Dr. Nandev Jine sir, IIC Convener Dr. Sandeep Kedkar sir, and coordinator of this workshop, Dr. Santosh Admani sir, and speaker of this workshop, Advocate Bharti Navlani. So this session is very important because if we have a complete idea for startup, then first thing we have to do is that we have to write a business model plan. So this workshop will insight us about a business model canvas. So for starting this session, firstly, I request the principal of this college, Dr. Shankar Lavre sir. So welcome address. Thank you, Syed sir. Today we have organized a webinar on business model canvas for how to prepare a business plan of your own business. And we have with us Vice Principal Dr. Nandev Jine, IIC Convener Dr. Sandeep Khedkar, Syed sir, and coordinator of this program, Dr. Santosh Admane, all head of the departments, faculty in charges, and students, those who are interested in entrepreneurship, startups, and business development. We have with us Advocate Bharati Navlani. She is our student and she is pursuing her PhD in commerce. So I welcome her on behalf of Mula Education Society and on behalf of our staff and student. Bharati, we welcome you all along with, can say, this particular program. So Bharati, for accepting our invitation and preparing for this particular webinar, I'm very thankful to you. We have started this IIC long back in 2018, and we have, can say, completed many programs. We are rated 2-star, then finally we are rated with 4-star, and then this year we are also planning many, can say, programs for the students, those who want to become entrepreneur. So this is basically a platform where students are nourished and nurtured for the skills what they require exactly in business development. अगर किसी को business करना है, किसी को अपना startup शुरू करना है, तो उसके लिए कुछ skill की जरूरत होती है. And for that we have with us Yash Business Incubation Center. Through this center we are, can say, inculcating students with different, can say, skills. At the same time, we are having IIC, that's Institution Innovation Council, supported by Ministry of Education, Government of India, as innovation cell. And through this, we are running the programs. We have national education policy. At the same time, we have entrepreneur and startup policy for the students. So we are supporting our students so as to, can say, nurture them and nourish them for this particular skill. So thank you very much for Bharti and all the, can say, participants who are participating in this program. This is not a general program. This is very specific for the specific student. So the number is less, but no doubt all these students are really interested and teachers are really interested in this particular program. Thank you. Thank you very much, sir, for your welcome address. Now I request Dr. Sandeep Khedkar, sir, to introduce today's speaker. Welcome. Morning, everybody. I'm here to introduce today's resource person, Bharti Navlani madam. She is a resource person of this workshop on business model canvas. She is an advocate and obtained the degree of law from Pune University. She's
also an associate member of the Institute of Company Secretaries of India. She completed her bachelor's and master's in commerce from Pune University. She's also pursuing PhD from Mula Education Society's Arts, Commerce and Science College, the Department of Commerce, and under the supervision of Dr. Sharad Dharandale sir. To her credit, she has different key skills and functional areas like insolvency matters under IBC, preparation of resolution plans, insolvency resolution and advisory, NCLT, DRT, SARF matters, corporate laws and banking law matters, etc. With experience of more than 5 years, she is practicing as an advocate and successfully represents the clients in various courts, specializing in National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal. She continues her ongoing professional development in law to remain at the forefront of legal developments, ensuring a top-notch legal service to the clients. She is a legal advisor to many corporates working in manufacturing, finance, fintech, media and entertainment, healthcare, IT, and the education sector. Her non-litigation work includes assisting in legal and regulatory compliance, documentation of policies and contracts. So with this, I welcome today's speaker, Bharti Navlani ma'am. Thank you, Sandeep Kedkar sir, for a nice introduction of our today's speaker. To start this session, I request today's speaker, Advocate Bharti Navlani, to start the session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you all the dignitaries and for that wonderful introduction of mine. And a very good morning to all of you. Okay, so so today's topic is business model canvas. If you might have known anything about business model, this is one of the business model which we are going to discuss today. Okay, I hope everyone is fine with English and Hindi both. I will kind of mix match both the languages so that you can understand it well. Okay, so let me begin with the topic. So business model means, you know, what exactly, if we see what is a business model canvas, if I would like to brief it, canvas is something known as a frame, you know, something if we put together in a frame. And you might have seen in childhood we used to play puzzles, and in that puzzles we used to, you know, connect all the puzzles together, like you can see in this picture. We used to connect all the puzzles, and the picture would complete. Okay, so similarly business canvas bhi yahi hai. Business canvas basically एक framework है जिसमें 9 categories में हम अपना business divide करते हैं, and then we try to analyze it properly कि हमारा business कितना हमें returns दे सकता है, whether it is feasible or not. So accordingly हम इसके ऊपर हम जब ये जो 9 points plot करते हैं, तो इस पे हम अपना बिजनेस अच्छे से समझ सकते हैं. एक बर्ड्स आई व्यू, व्हाट वी कैन कॉल इट एज, एक हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि वेदर आवर बिजनेस इज, यू नो, इफ इट इज फिजिबल, if we can do it, or if there are certain loopholes, or what are the challenges we can face. So similarly, business model canvas is basically a framework wherein we kind of put in all the 9 points. We try to figure out whether we just jotted down all the points, whatever we are going to discuss ahead. And then we try to understand whether, you know, the business is going to give any returns or not. Okay, so now let's start. Business model, basically, you know, you can use this model at a very startup stage where you know you don't have any business before, and or maybe, you know, at a very transformation stage jahan par aapka business ek transformation le raha hai. Like currently you are into a business which is maybe you are working at a certain capacity, and then you want to increase the capacity and want to transform it altogether, or maybe you want to diversify it,
say you are into a manufacturing sector of tires and now you want to enter into the car manufacturing business, so it is called diversification. आप अपने business को basically diversify कर रहे हैं, ठीक है ना. इसके अलावा if we see this model is also useful at the point of acquisition. If you want to, you might have studied acquisition, and when your business, you are trying to acquire another business, you are currently into a business, आप एक business already कर रहे हैं, and then you want to expand in some different line, or maybe you want to acquire some other business. So even in that case, this model is very useful. Now I'll tell you what are the the basic points, what the canvas looks like. And this canvas is the child brain behind the business model canvas is of Alex Osterwald. He is currently he invented this entire business model canvas, and he is currently even into he has his own business lines, and he's kind of spreading the knowledge of this business canvas everywhere. So this is what the business canvas looks like. First of all, the business canvas, the first block in the business canvas is customer segment. And like I'll just first of all give you an overview of all the 9 points, and uske baad we will break up and see what all what all the blocks talk about, what basically are the points in the blocks. So the first one is the customer segment. Second is key activities. If you can see this canvas, these are all interconnected. कोई भी एक segment अकेले में काम नहीं कर रहा है. If you see the parts, they are all interconnected with each other. So that is why similarly, when we do a business, all the segments are interconnected. It cannot be like only one area is doing well and other is not doing well, and then the business will never progress. So all these blocks, all these kind of small segments are being clubbed together, they are being brought together, and then isko hum kya karte hain na, like we look at it at a bird's eye view, like hum usko ek ऊपर के मतलब like entirety में देखते हैं कि whether the business is fruitful or not. So if we talk about the first segment, this is customer segment. Customer segment, if you all I think are commerce students, and you all might be knowing one of the most important revenue generation point is when your customer is satisfied, right? So customer satisfaction is one of the most important segment in this business canvas. Customer segment क्या होता है ना, like if you can see in this pictures, like हम क्या करते हैं, customers को अलग अलग categories में divide करते हैं, and then जब हम customers को अलग अलग categories में divide करते हैं, there are certain grounds जिसके basis पे हम customers को अलग अलग segments में break करते हैं. And then what we do is, जब हम इसको ब्रेक करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, we divide it into different categories. सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, उसके बाद आता है जियोग्राफिक फैक्टर्स, उसके बाद आता है साइकोग्राफिक फैक्टर्स, एंड देन बिहेवियरल फैक्टर्स. अगर हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि ये है डेमोग्राफिक सेगमेंट्स. डेमोग्राफिक सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, तो उन्हें हम बहुत सारी डिफरेंट छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, जेंडर बेस्ड डिवाइड कर सकते हैं, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, उनका क्या रिलीजन है बेस्ड ऑन दैट हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, या उनका इनकम ग्रुप क्या है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, अहमदनगर की मैं बात करूं तो majority of the population, if you see, are of a younger age group. Okay, so younger age group means what? Like they are of a age group majorly, majorly they would be youngsters around 22 years of age. So the majority of the population is what? They are the younger groups. Okay, so younger groups में क्या demand होगी सबसे ज्यादा?
they will need cool t-shirts, maybe backpack if they are college going students, or maybe they need registers. तो ऐसी एरियाज में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल लाइक टू मतलब जो बिजनेस कोई भी बनाएगा ऐसे ऐसे कैटेगरी ऑफ जियोग्राफी में, तो वो क्या करेगा, वो कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पर वो ऐसी बिजनेस करेगा जहां पर द क्राउड इज मोर ऑफ यंगस्टर्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स डेवलप करने की कोशिश करेगा. से अगर अनदर एग्जांपल इफ आई टेक, you might have seen many of the products come with a family size. So एक होता है ना कि फैमिली साइज का प्रोडक्ट मिलता है, एक स्मॉल साइज होता है, एक मीडियम साइज होता है, एंड देयर इज अ फैमिली साइज का कोई पैक होता है, कोई प्रोडक्ट होता है. तो दैट दे हैव डिजाइंड बेस्ड ऑन द थॉट दैट कि कोई अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके लिए एक बड़ा फैमिली पैक बना दिया जाए उसी प्रोडक्ट का. इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, उसके लिए छोटा प्रोडक्ट बनाया जाए. तो the business developers mentality is basically कि crowd कैसा है, they try to understand what is the demography of that area. जैसे कि कोई for example educated class है ज्यादा, तो they will try to provide more of books in that area. And accordingly, like gender, अगर बहुत सारे females है तो फिर they'll try to give more of the cosmetic products or maybe designer suits and everything like that. So the first category in which the customers are divided is demographic segment. Demographic segment is like dividing the entire group into smaller categories so that we can identify which category, which customer we are trying to target. Also, I can give you an example. Say आजकल आप if you are searching for any product, आपको कुछ खरीदना है, and then you go online, you search, okay, like for example you search a iPhone and you search it on like Amazon. If you are searching it on Amazon, you will search it, you will maybe एक heart बना दोगे उस पे, maybe you like it or maybe you put it in your cart and then you leave it, okay. उसके बाद you just leave it, and थोड़ी देर बाद wherever you open your phone, maybe if you open your apps like Facebook, Instagram, कोई भी app आप open करोगे, you will see the same products are being highlighted over and over again, like this is the discount going on and this is the last day, you can buy it right now, otherwise the discount will get over. So similarly, what is it, this is like the Google is doing their own market study, कि customer को क्या चाहिए. There is a search engine, एक artificial intelligence होता है जो Google की search engine में backend पे काम करता है, and then they try to target कि customer को क्या चाहिए. They try to see what the customer is searching, and then they try to offer the same products to that customer. Okay, so this is how the business developers try to target their customers. They try to target it by what the customer wants, because what in any business, customer को हम कहते हैं king of the market, क्योंकि customer को जो चीज चाहिए अगर आप उन्हें उनके कस्टमाइज करके जैसे उन्हें चाहिए, if you try to provide it, तो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है तो वो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट अगर आप कस्टमर को वो चीज देते हो जो कस्टमर चाहता है. तो अकॉर्डिंगली जो टारगेट एरियाज होती है, जो भी डेवलपर होता है, बिजनेस डेवलपर होता है, दे ट्राई टू टारगेट इन अ वे कि जो कस्टमर है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होगा. अगर वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, इफ आई ब्रेक इट डाउन अगेन, द कस्टमर सेगमेंट का अगर नेक्स्ट पार्ट जो है ये है ज्योग्राफिकली हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं. अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो कस्टमर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कंट्री वाइज. से फॉर एग्जांपल इफ आई लिव इन यूएस, तो वहां पर जो है ठंड बहुत होती है, तो अकॉर्डिंगली वहां पर कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा दिखते होंगे, ठंड के प्रोडक्ट्स, हॉट वाटर बैग्स, ब्लैंकेट्स, मे बी जैकेट्स, ये सारी चीजें जो कंट्रीज में बहुत ज्यादा वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होते हैं वहां पर ये सारी चीजें दिखती है. तो अकॉर्डिंगली जो बिजनेस डेवलपर है वो अपना आइडियाज अकॉर्डिंगली प्लान करता है कि कौन सी कंट्री में मेरा प्रोडक्ट चलेगा, कौन से कंट्री में हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा. इफ फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर मैं एक ऐसे रीजन में रहती हूँ जहां पर सारे लोग वेजिटेरियंस है, एंड इफ एक फिशरमैन है जिसको अपनी फिशेस वहां पे सेल करनी है,
उस एरिया में जहां पर सारे वेजिटेरियंस रहते हैं, तो क्या उसका प्रोडक्ट कभी भी वहां पर बिकेगा? ऑब्वियसली नहीं। कभी भी उसका प्रोडक्ट ऐसे ऐसे सेगमेंट में नहीं चलेगा जहां पर पूरे वेजिटेरियंस है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू बाय हिज फिशेस, राइट? So what he should do is he should find out a category of people जहां पर नॉन वेजिटेरियंस खाने वाले हैं, जो फिश खाने वाली एरियाज है जहां पर उसके फिशेस सेल होंगे, ठीक है ना? सो जो बिजनेस डेवलपर है उसे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि क्या मेरा प्रोडक्ट जहां पर मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो वहां बिकेगा या फिर वो ऐसे ही एक फेल्ड बिजनेस प्रूव होगा। अकॉर्डिंगली जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं विलेजेस की बात करूं, तो विलेजेस में यू विल सी nobody is going to sell shorts and jeans in villages. Rural areas में usually you will see farmers wearing dhotis, kurtas. So accordingly the manufacturer tries to target the market जहां पर वो अपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स डिवाइड करते हैं। जैसे क्लोथिंग लाइन की मैं बात करूं, तो अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथिंग बिजनेस, मैं क्या करूंगी, मैं अर्बन एरियाज में जीन्स सप्लाई करूंगी, मैं शॉर्ट सप्लाई करूंगी, मैं टी शर्ट सप्लाई करूंगी। एंड इफ आई गो टू द रूरल एरिया, व्हाट विल आई सप्लाई? आई सप्लाई साड़ीज, आई सप्लाई मे बी धोतीज एंड कुर्ता। सो the the business developer kind of divides his market in a way where his products are being supplied, and where there is a customer base जिस जहां पर उसका प्रोडक्ट काम करेगा, ठीक है ना? एंड इफ आई गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो एक रहता है कि साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जिसको कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, तो साइकोलॉजी इज व्हाट? साइकोलॉजी इज कि किसी इंसान का माइंडसेट कैसा है। व्हाट इज साइकोलॉजी इज कि वो क्या चाहता है, उसे क्या बेसिकली पसंद है, उसके क्या टेस्ट है, उसकी कैसी लाइफस्टाइल है। बेसिकली ये सारी चीजों के ऊपर उसका माइंडसेट होता है कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज ही लुकिंग फॉर। से अगर कोई बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से है, तो उसकी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली ही विल गो फॉर मोर लग्जरियस गुड्स। उससे उसकी लाइफस्टाइल से ही विल नीड अ गुड आईफोन के प्रोडक्ट्स ही विल ट्राई टू यूज, और मे बी उसका सोशल स्टेटस इतना अच्छा है तो ही वुड लाइक टू बाय अ मर्सिडीज। तो जब कोई भी बिजनेस डेवलपर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो जो उस क्राउड में उनकी क्या साइकोलॉजी है उसकी भी स्टडी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो टाटाज है, इफ आई टॉक अबाउट टाटाज इज अ वेरी बिग ग्रुप। तो टाटाज में क्या है ना, दे गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू एथिक्स, दे आर वेरी वेरी हाईली एथिकल पीपल। इफ यू टॉक अबाउट टाटा, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट टाटा। तो वो अपना जो भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, दे मेक श्योर कि इट इज हाईली, मतलब वो एक इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि दे मेक श्योर दैट उनके एथिक्स कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। वो अपने प्रोडक्ट्स इस तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे कि वो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे, कस्टमर को भी उसमें पूरा 100% सेटिस्फैक्शन मिले। एंड इन अ वे दे ट्राई टू डिजाइन इट इन अ वे कि उनके अपने जो प्रिंसिपल्स है, बिजनेस प्रिंसिपल्स जिसे हम कहते हैं, they are not being compromised at any point of time. मतलब right from the the manufacturing till the जहां पर कि वो outlets में sell हो रहा है, तो they try to make it in a way where कहां पर भी ये उनके ethics compromise नहीं होते। Similarly if I talk about lifestyles, तो जैसे इफ यू गो इन मुंबई जहां पर बहुत ही एफ्लुएंट फिल्म स्टार्स वगैरह रहते हैं, तो उनकी जो क्लोथिंग्स होगी, उनके जो शूज होंगे, दे विल बी like like for a bag they will be paying lakhs of rupees, and for a dress they will be paying lakhs and crores of rupees. And if you go in an area जहां पर कि बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग रहते हैं, in that area you will never find someone like selling 2 lakh की एक dress, or maybe selling shoes and bags of a range which is they cannot afford. सो एक जो बिजनेस डेवलपर है वो अपनी पूरी स्टडी करके जाता है मार्केट में। जब भी वो ही इज ट्राइंग टू एंटर, he will always study all these factors and he will study it in thoroughly ki whether the customer is able to pay the price,
एंड अकॉर्डिंगली जियोग्राफिकली क्या वो सूटेबल है, क्या वहाँ का वेदर वैसा है कि मैं अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकूं, क्या मैं वहाँ पर अपना मतलब जो डेमोग्राफी है वहाँ की क्या वो सूटेबल है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टडी करता है एंड देन ही एंटर्स द मार्केट। अगर मैं बिहेवियरल सेगमेंट की बात करूं तो बिहेवियरल सेगमेंट इज व्हाट द बिहेवियर, एक लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोडक्ट अगर मैं सेल कर रही हूँ एंड if the customer is very sensitive towards the brand, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से है, ही विल व्हाट विल ही थिंक कि मुझे ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। ओके, सो ही विल ऑलवेज गो फॉर द ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई और बंदा है जिसका बिहेवियर है कि नहीं मुझे इतना एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदनी है, द फोन इज बीइंग यूज्ड फॉर कॉलिंग, तो मुझे उसी पर्पस के लिए मेरा जो बेनिफिट उसमें से होगा वो एग्जैक्टली उतना ही प्राइस में पे करूंगा। आई डोंट वांट फॉर the luxury, for the royalty and all of that. So the same उसी क्लास के सेम कैटेगरी के का पर्सन होगा जो कहेगा कि नहीं आई वांट प्रोडक्ट्स व्हिच आर लाइक सुटेबल फॉर मी, व्हिच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो देयर आर डिफरेंट बिहेवियर्स इन द मार्केट, दैट कस्टमर्स हैव डिफरेंट बिहेवियर। तो उसकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यू डोंट स्टडी द बिहेवियरल पैटर्न एंड यू जस्ट एंटर द मार्केट। ठीक है ना, क्या उस प्रोडक्ट का यूजेज होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोडक्ट यूज होगा, किस किस ओकेजन्स पे वो प्रोडक्ट यूज होगा। सो दिस इज हाउ अ बिजनेस डेवलपर एंटर्स द मार्केट, लाइक पूरी डिजाइनिंग पूरी स्टडी करने के बाद ही एंटर्स द मार्केट। तो ये फर्स्ट हमारा सेगमेंट है। अब क्या होता है ना, जब भी हम मार्केट में एंटर करते हैं तो डेवलपर वो सोचता है कि किस कैटेगरी को टारगेट करूं, क्या मैं मास कैटेगरी को टारगेट करूं या मैं किसी small category, like out of the entire mass category, should I target only the small category of people। तो वो अपना स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी बनाने का रीजन ये होता है कि whenever you always need to have a plan before you enter the market। ऐसा कभी नहीं होगा कि you just enter, चलो एक ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमने एंटर किया, नेवर, because there is a huge cost involved, there is a huge time, effort, everything is involved in whenever you enter a market with a new product or maybe in an existing market। So for example अगर मैं मास मार्केटिंग की बात करूं तो मास मार्केटिंग में क्या होता है, जो डेवलपर होता है he is trying to target the entire the huge wide area of customers। For example you all must have heard about अमूल तो सभी जानते हैं। तो अमूल जो है इट इज ट्राइंग टू केटर द नीड्स ऑफ all the customers। वो 10 रुपए की दही भी बेचेगा, he will sell 1000 की आइसक्रीम भी। सो मतलब कि जो हमारे कंट्री में जो लार्जर पॉपुलेशन है, लार्जर पॉपुलेशन कैसी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मे बी नॉट मेनी आर ऑफ अपर मिडिल क्लास। तो फिर वो क्या करता है कि जो मिडिल क्लास कैटेगरी की या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी है, दे आर द मास, दे आर इन मास, द पॉपुलेशन इज वाइड, तो उनके नीड्स को केटर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड मास मार्केटिंग। जब भी फॉर एग्जांपल लाइक आई गिव यू अमूल, तो इट विल ट्राई टू केटर मास मार्केटिंग। देयर इज अनदर एग्जांपल, जैसे if you go for a टी सेल, एक टी सेलर है मान लो, तो टी सेलर क्या होता है ना, he will try to like वो महाराष्ट्र में तो there are many अमृतालयस, ऐसे बहुत सारे टी स्टॉल्स बने हुए हैं। तो they will keep the price very low ताकि कोई भी अफोर्ड कर सके, and they give good taste and quality ताकि हर कैटेगरी का बंदा वो अट्रैक्ट कर सके। तो दिस इज कॉल्ड मास मार्केटिंग, कि ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी के लोगों को, जो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा क्राउड है उसको हम अट्रैक्ट कर सके, उनके लिए प्रोडक्ट्स बना सके, उनकी नीड्स को हम केटर कर सके। दैट इज कॉल्ड मास मार्केटिंग। ठीक है ना। सिमिलरली इफ आई सी द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, दैट इज नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग में क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल नीश मार्केटिंग इज लाइक वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप को ही टारगेट करता है। उनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, आपने रोलेक्स की घड़ियां तो देखी होगी, तो रोलेक्स की घड़ियां होती है 50,000, 60,000, 70,000 से स्टार्ट। तो डू यू थिंक एक जो मिडिल क्लास कैटेगरी का इंसान है जो 30-40,000 अ मंथ कमा रहा है, विल ही एवर थिंक ऑफ बाइंग अ रोलेक्स वॉच? नेवर।
वो तो सिर्फ वो कैटेगरी के जो कस्टमर्स है जो 5 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, ओनली दोज कैटेगरी ऑफ पीपल कैन टारगेट, कैन थिंक ऑफ बाइंग अ रोलेक्स वॉच, बिकॉज फॉर देम इट इज अ ब्रांड एंड दे कैन इवन अफोर्ड. तो वो होता है ना कि लिमिटेड एडिशन वॉचेस. तो लिमिटेड एडिशन वॉचेस आर व्हाट, दे आर वेरी फ्यू, दे विल डिजाइन ओनली 2-3 वॉचेस, जो कि 2-3 होंगे पूरी मार्केट में इफ यू सी एनीवेयर, एंड दे हैव देयर ओन वैल्यू. बिकॉज दो दिखाती तो वो टाइम है जो एक 100 रुपीज की वॉच भी दिखाती है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज द ब्रांड, द यू नो द रॉयल्टी विद द यू नो द लग्जरी इट कैरीज. सो नीश मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है. नीश मार्केटिंग में द डेवलपर ट्राइज टू cater the customers needs, जो कि एक हायर कैटेगरी में है. से फॉर एग्जांपल इवन इफ आई टेक ऑफ आईफोन, आईफोन भी नॉट मेनी पीपल विल बाय इट. अगर एक फोन मार्केट में 10,000 की कैटेगरी में आता है, एंड देन देयर इज अनदर फोन which is 1 lakh rupees, so why would anyone go for 10,000 rupees? Why would anyone go for 1 lakh rupees ka phone, right? So what happens in niche marketing is they would try to cater the needs. एक specific category है, मतलब out of entire category of customers they will just pick one category of people and उसी को target करते हैं, उसी के needs के लिए goods बनाते हैं, goods होते हैं, services होते हैं. तो एक particular जब हम अगर हम किसी particular एरिया में एक आउट ऑफ द एंटायर कस्टमर्स एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट उठाते हैं और एक स्पेसिफिक उनके नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं नीश मार्केटिंग. नीश मार्केटिंग वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, नेक्स्ट इज multi-sided marketing. What is multi-sided marketing? You all must have seen कि their Zomato is a very popular example. Multi-sided marketing में क्या होता है ना, there are customers, मतलब कि क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट्स है, उनकी एक डिमांड है कि उनको कस्टमर्स मिले, एंड सिमिलरली देयर आर कस्टमर्स हु वांट टू हैव फूड, दे वांट टू हैव टेस्टी फूड बट दे डोंट वांट टू गो आउट, दे वांट इट एट होम. तो जोमेटो का क्या काम है? व्हाट इज द रोल ऑफ जोमेटो? जोमेटो क्या करता है? कस्टमर्स को भी कनेक्ट करता है एंड रेस्टोरेंट ओनर्स को भी कनेक्ट करता है, एंड देन इन बिटवीन वो क्या करता है कि दोनों को कनेक्ट करा के एक डबल साइडेड मार्केटिंग हो गई एक तरीके से. दे आर ट्राइंग टू cater the needs of restaurant owners as well as the consumers जो food different kind of food try करना at their the comfort of their home वो try करना चाहते हैं. तो this is an example of multi-sided marketing. अगर और एक example मैं इसके बारे में दूं multi-sided marketing, तो आपने देखा होगा उबर कैब्स आजकल बहुत ही पॉपुलर है. तो उबर कैब्स में क्या होता है? उबर कैब्स डू द सेम थिंग. व्हाट दे डू, जो पैसेंजर्स है या ट्रैवलर्स है उनको कनेक्ट करता है, एंड जो ड्राइवर्स है या कार ओनर्स है उनको कनेक्ट करता है, एक मार्केट में ले आता है और दोनों को एक साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो ही इज द सेंटर पॉइंट जो दोनों साइड से मार्केटिंग कर रहा है, द डिमांड साइड एज वेल एज द सप्लाई साइड. And there is again another example in this, like say for example Netflix, again a very very popular these days an OTT platform. If you see, you all must have seen movies on Netflix. तो Netflix is what? Netflix क्या करता है? Netflix क्या करता है, जो भी जिसको जैसे वो कैटेगरी के कस्टमर्स जिसको मूवी देखना पसंद है, जो मूवीज बहुत वेब सीरीज और मूवीज देखना पसंद करते हैं, उनको टारगेट करता है. एंड देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ लाइक द सप्लायर्स, लाइक द प्रोड्यूसर्स जो कि फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन दे सेल देयर द मूवीज, देयर वेब सीरीज टू नेटफ्लिक्स, एंड देन नेटफ्लिक्स इन टर्न शोज इट ऑन एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहां पर कि वो जो मूवी वॉचर्स है वो देखते हैं उस पे मूवीज. So again, you can see the Netflix is in between. क्या किसके between? The producers जो movies बनाते हैं, and there is another category of people who watch the movie. ठीक है ना? So this is how they connect, and this is how multi-sided marketing, मतलब two-sided, three-sided marketing is done in a way where demand and supply both, they try to attract the customers from both the sides. So this is called multi-marketing. Another thing you all must have, कभी ना कभी आपने 80-20 रूल सुना होगा.
What is 80-20 rule? 80-20 rule is like, for example, अगर आप अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं तो 80-20 रूल में क्या होता है ना, 80% ऑफ द टाइम दैट यू गिव इज जनरली यूजलेस. और जो मतलब आप अपने दिन में भी देख लो, आप लाइक इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम 9 in the morning to 6 p.m. in the evening, so you what you will realize is the 2 hours of your 1-2 hours is the time when you effectively work. बाकी का जो 6-7 hours है ना, that time you are searching something, मे बी आप उसके पीछे की बैक स्टडी कर रहे हो, या फिर यू आर थोड़ा सा लेजी हो गए, कभी टाइम यहाँ वहां स्पेंड कर दिया. बट व्हाट इज द इफेक्टिव टाइम दैट यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इज ओनली 20%. एंड दिस इज द रूल विच अप्लाइज एवरीवेयर. मतलब दिस इज एक इतना पॉपुलर रूल बनाया है. इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द बिजनेसेस की, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू कैन सी इट इन नेक्स्ट स्लाइड. क्या होता है, जैसे 20% ऑफ योर क्लाइंट्स, जो क्रीमी क्लाइंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि द क्रीमी क्लाइंट्स, तो उनसे ही हमें मैक्सिमम पैसा मिलता है. और जो 80% ऑफ कस्टमर्स है वो तो ऐसे ही है, मतलब दे आर देयर बट दे आर नॉट जनरेटिंग मोर ऑफ रेवेन्यू. तो दिस इज द तो द बिजनेस मॉडल शुड बी डिजाइन्ड इन अ वे कि हम जो अननेसेसरी कस्टमर्स है, अननेसेसरी जहां से हमें वेस्टेज हो रहा है, फंड्स का वेस्टेज हो रहा है, तो उनको हम एलिमिनेट कर सकें. तो ये जो बिजनेस मॉडल है, इट इज बीइंग डिजाइन्ड इन अ वे कि सो दैट you can ignore, you know what to accept it and what to ignore. So similarly, if you see here in this picture, you see that 20% of your clients, 20% of your customers are giving you 80% of your revenue. Okay, and then what the 80% of customers are giving you 20% of revenue. Okay, so this is how 80-20 rule is applied. And even in your daily life, if you see, this 80-20 rule is very popular. आप अपने life में भी देखोगे, you are only working for 20% of the time and rest 80% is useless. So that's what I'm trying to say. It is the 80-20 rule is being used everywhere, and it also applies in a business model. Okay, so this is how you should know what you should accept and what you should reject when you are doing a business. The next the next canvas, the next block on the canvas is customer relationships. तो कस्टमर मतलब कि एक कोई भी बिजनेस है, उसको कितने सारे स्टेक होल्डर्स से डील करना पड़ता है. एक जो बिजनेस है उसको अपने कस्टमर्स तो भगवान है, दे आर द किंग ऑफ द मार्केट, तो उनके साथ उसको अपने रिलेशंस बनाने होते हैं. देन गवर्नमेंट ड्यूज पे करने होते हैं, तो गवर्नमेंट्स के साथ भी उनको अपने रिलेशंस अच्छे रखने होते हैं. देन एम्प्लॉइज है, अगर एम्प्लॉइज को आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे तो देन अगेन द एंटायर बिजनेस विल फेल. तो एम्प्लॉइज को भी अपने साथ जोड़ के रखना है. देयर आर लेंडर्स लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमें लोन्स देते हैं टाइम टू टाइम, हमारे फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं. तो नेक्स्ट आर सप्लायर्स कौन होते हैं, जिनसे हम सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए. एंड देन द कम्युनिटी, जिसको हम सोसाइटी कहो, कम्युनिटी कहो, जिनको हम वी गिव बैक वट एवर वी टेक फ्रॉम द सोसाइटी. तो हम उन्हें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, गुड क्वालिटी सर्विसेज देते हैं. तो वी द बिजनेस हैज टू डील विद ऑल दिस कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स, एंड इनके साथ अपने रिलेशंस बनाने की हर बिजनेस कोशिश करता है. अगर कोई बिजनेस डेवलपर इन चीजों पे ध्यान ना दे तो उसका बिजनेस इज डेफिनेटली गोइंग टू फेल, बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर. इसके बिना तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे. If you don't maintain the relationships with all the stakeholders, your business is definitely going to fail. Why I'm saying so, I'll show you in the next slide. Okay, so now customer relationship क्यों इतना जरूरी है? Say for example, आपने अपने customers को services नहीं दिए. If you do not provide them with like, say for example, I'll give you an example. There is one shopkeeper in your society, grocery shop. वो अंकल है ना, आप कभी भी उनके पास जाते हो ना, he'll give a good smile. अच्छा, आपको चेंज चाहिए होगा तो कभी वो आपको चेंज भी दे देंगे. वॉट एवर गुड्स यू वांट, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देंगे कि चलो आप बाद में क्रेडिट पे दे देंगे कि आप बाद में पैसे दे दो. एंड
सिमिलर उसी सोसाइटी में देयर इज अनदर शॉपकीपर हु इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल, वो अपने एक एक दाना मेजर करके देगा कि 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ही विल नेवर गिव यू क्रेडिट, ही विल ऑलवेज गिव यू बैड लुक्स अगर आप उनको पैसे नहीं देते हो। तो which category, which shopkeeper would you like to visit again and again? The shopkeeper who is very rude and not that good, or the shopkeeper who is always jolly, smiling, giving you credit, okay, he's fine with you, is very comfortable with you? Obviously you will go for a shopkeeper who is very jolly, who will give you credit at times, kabhi change chahiye to wo bhi de dega, है ना? तो what is the difference between the two shopkeepers? They are selling same products, they are selling everything is similar, product bhi same hai, price bhi same hai, there is no such difference as such. The only thing is the attitude, कितनी positivity से वो आपसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से, whether they give you respect. तो customer relationship is very very important, especially I would say customer relationship कहाँ पर सबसे ज्यादा काम आता है? If you see hospitality industry, if you go in any hotel कहीं, या फिर if you are traveling by air, तो वो आपको इतनी अच्छी सर्विसेज देंगे, द एयर होस्टेस विल ऑलवेज गिव यू स्माइल, वेलकम सर, वेलकम मैम, व्हाट इज दैट? दैट इज दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद यू. Okay, so wherever the customer is satisfied, the relationship is good, the customer is satisfied, there is a direct relationship. जितना कस्टमर को आप अच्छे से वेलकम करोगे, जितना कस्टमर को आप रिस्पेक्ट दोगे, उतना ही कस्टमर आपके पास रिटेन करेगा, उतने ही दिन तक वो आपके साथ रुका रहेगा. द मोमेंट आप अपना पॉलिसीज चेंज कर दोगे, और इफ यू डोंट गिव देम मच ऑफ रिस्पेक्ट, तो दे विल डाइवर्ट देमसेल्फ, वो कोई और जगह पे चले जाएंगे जहां पर उन्हें बेटर सर्विसेज, बेटर रिस्पेक्ट मिल रही है. आई हैव सीन मेनी बैंक्स, if you might have ever hold an account in गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाइक इन सम गवर्नमेंट बैंक, से फॉर एग्जांपल एसबीआई में आपका अकाउंट है, यू गो देयर, आप कभी उनसे बात करोगे, दे विल, मतलब वो इतना एंटरटेन नहीं करेंगे आपको, दे विल नॉट गिव यू दैट गुड रिस्पेक्ट, वेलकम जी, आओ जी, बैठो जी, दैट इज नॉट द थिंग. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू गो इन एनी प्राइवेट बैंक, so they will be like, are you want to open an account, just wait, we will just give us a call, we will be there at your home. So can you see the difference? वो क्या है? वो relationships, जो private sector है, private banking sector है, they are trying to maintain relationship with the customers, whereas जो public sector banks है, they are already very developed, established, they don't need customers as such. तो इसीलिए they don't give too much of importance to relationship management. Whereas the private sector, they are like, even if you go in hospitals, which are private sector hospitals, वहां पर आपको इतना अच्छा वेलकम मिलेगा, you go there, there'll be AC all around, और वहां पर टीवी चलेगी, you go and sit there आराम से आपके साथ, हाँ जी मैडम, do you need any coffee, tea, anything? Why? Because they are trying to develop the customer relationships. अब customer relationships को मैं further break करूं, तो the first category which comes in custom, what are the types, like किस तरीके से हम अपने customers के साथ relation develop कर सकते हैं? तो the first thing is personal assistance. Now what do you mean by personal assistance? Personal assistance मतलब for example कि आप को कोई चीज डिजाइन करवानी है, या कोई प्रॉब्लम है, एंड देन आप, जैसे आपने से फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, एंड द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, खराब हो गया, द डे यू गेट इट, आपको उसमें कोई इनपुट नहीं, वो स्क्रीन खराब हो गई, पूरा ब्लैंक हो गया, इट इज कम्प्लीटली इनटू अ स्टैंड स्टिल पोजीशन, कुछ काम नहीं कर रहा है. You go to the owner, the shopkeeper, and say that the day I have got it, उसके next day से ही ये चलना बंद हो गया, it is not working at all. तो do you think कि वो आपको मतलब immediately कहेगा चलो okay, it's fine, give it to me, I'll give you a new one? ऐसा generally हम देखते हैं नहीं होता है. But like if you go in say Croma is a very good example. Croma is a very big brand. जनरली इंडिया में तो नहीं, पर आउट ऑफ इंडिया इफ यू गो, क्रोमा में क्या होता है, देयर इज नो क्वेश्चन रिटर्न. मतलब कि अगर आपकी कोई चीज खराब हो गई है, और इफ यू कम बैक आफ्टर 6 months एंड से कि यार ये तो है ना काम नहीं कर रहा है, और आई एम नॉट लाइकिंग इट, दे विल नॉट इवन आस्क यू कि आपका क्या, किस रीजन से आप इसको रिटर्न कर रहे हो. तो they will take it. That means there is a policy called as no question return.
मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जब आप प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहो तो, ठीक है ना. सो दैट इज कॉल्ड नो क्वेश्चन रिटर्न. But this obviously is not a policy which can be implemented in a country like India. नहीं तो हम every second day क्या करेंगे, कोई चीज लाएंगे, we will use it and we will return it back. तो इंडिया में तो ये पॉलिसी काम नहीं करती है. But what is this? This is just called personal assistance. वो आपको personally assist कर रहे हैं. They will not even ask you कि क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है. They'll just take it. Why? Because again, customer relationship most important. तो पर्सनल असिस्टेंस आप जितना जो भी कैटेगरी ऑफ बिजनेस डेवलपर्स है, वो अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस देते हैं तो उससे आपका रिलेशनशिप विद दैट कैटेगरी ऑफ विद दैट बिजनेस डेवलपर विल ग्रो, द ट्रस्ट विल ग्रो. ओके, एंड देन यू विल ट्राई. अगर कभी कभी कोई चीज महंगी है एंड स्टिल इफ दे आर गिविंग यू पर्सनल असिस्टेंस, वो आपके साथ हर बार खड़े हैं जब भी यू नीड इट. फॉर से एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर वो आपको प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, द मोमेंट यू नीड फंड्स इन योर बिजनेस और इमीडिएटली अगर आपको फंड्स मिल जाते हैं, तो देन देयर इज अ पर्सनल असिस्टेंस. दे विल गिव यू अ कॉल, सर आपके अकाउंट में है ना वो चेक ओवरड्यू हो गया है एंड अमाउंट इज लेस, यू नो देयर आर चांसेस कि चेक बाउंस हो जाएगा. तो these all things are what they are trying to give you a, they are trying to maintain the relationships with you. And even if your price is little bit higher, say for example आपकी interest charges ज्यादा है, और maybe you know आप loan लेते हो तो जो process charges है वो ज्यादा है, but still the customer will come to you. Why? Because you give them a personal assistance. You know the businessmen, they want to do business. They don't want to get into these kind of you know things कि बहुत hassle है, बैंक में बार बार जाना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है. They just want to do the business. अगर उनको सर्विसेज अच्छी मिलेगी तो at times they will even not think about the price that the bank is charging. It's okay. मतलब वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, I will pay higher charges but my business should not stop. On the other hand, अगर कोई constantly जो banks है जो proper services नहीं देते हैं, तो उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा even if they give a lower interest rate or maybe the bank charges are comparatively less. So people will go to that kind of, they will take that services or they will go into a market where the personal assistance is good. Okay, the services which are provided are at the best. Next in category of customer relationship, if you see, आपने कभी ATM यूज किया होगा. You go there, आपको अपना कार्ड इंसर्ट करना होता है. You remove the card, you put the pin, and you know your money is coming out from that machine. So this is what? This is personal services. इसमें क्या होता है ना कि जो कस्टमर है, जो बिजनेस डेवलपर है या जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस ओनर है, they do not come directly into the contact of customer. वो बीच में एक ऐसा डिवाइस बना देते हैं जिससे कि कस्टमर्स को अपने आप से सर्विसेज, मतलब विदाउट एनी हैसल कस्टमर अपने आप सर्विसेज ले सकता है. अब देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इवॉल्विंग. अभी तक इंडिया में तो खैर इतना पॉपुलर नहीं है, बट अमेरिका एंड कनाडा, यहाँ पर अगर आप जाओ ग्रोसरी स्टोर्स में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, व्हेन यू गो इनटू द ग्रोसरी स्टोर्स, द मोमेंट यू पिक एनी प्रोडक्ट एंड यू पुट इट इनटू योर कार्ट, तो कार्ट के ऊपर एक स्क्रीन होता है एंड द on that screen you know immediately amount is being reflected कि आपने ये goods purchase किया है, आपने अपने कार्ट में डाला है, और this is the value which you have to pay at the checkout. So this is also what the example of self service. The moment you put things into your cart, वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है. Not like you know you don't have to calculate it there कि अच्छा what will I have to pay, whether there will be discounts or there will be no discounts. So this is all self-service. The more you give self-service to your customers, the more happy they are, because they don't have to, you know, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है इसमें. The customers themselves can resolve their problems. Okay. Next in this category is automated services. Now, what are automated services? Again, ऑटोमेटेड सर्विसेज बिना किसी मतलब एक डिवाइस बीच में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर यू नो एवरीथिंग इज लाइक, फॉर एग्जांपल आपका फोन खराब हो जाता है, या देयर आर मेनी यू नो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड खरीदना है, तो यू विल कॉल ऑन अ सर्टेन नंबर. दे विल से दैट अच्छा if you want to the language is should be Hindi, type press 1,
If you want it in English, press 2. This is automated services. In this, you just have to choose the options and your matter is resolved. Whatever your problems are, they are resolved. Okay, so this is another kind of method in which, the owners try to maintain, they try to come close to their customers, they try to resolve their problems in a way जहाँ पर कि बहुत ज्यादा they try to resolve all the problems of the customers, and they try to come close to the customers. The next in this category, customer relationship, is communities. अभी communities मतलब क्या? Communities क्या होती है? जैसे for example, I am a professional, like I am an advocate, I am a professional. I want to communicate with all the professionals out in the world. मतलब मुझे और बहुत सारे professionals को मतलब उनके साथ अपने क्या कहते हैं बिजनेस डेवलप करना है, उनके साथ जुड़ना है. I want to get associated with all the advocates. तो मैं क्या करूंगी? I will go on certain professional websites जहाँ पर की advocates की community होगी, जहाँ पर सारे advocates listed होंगे, empaneled होंगे, जिनके साथ मैं communicate कर सकती हूँ. So that I can resolve problems on my own. मतलब like me being into a business, मैं अपने एंगल से देखूं. जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है and they come up with their problems जिसका law में कोई solution नहीं है, so what will I do? I will not sit with the problem and say that client bye bye, I can't solve your problem, right? I will go and communicate with other similar profile people who are doing a similar business. I will go to them, I will discuss the problems of the client. Maybe they come up with some results, and then I can take up the case and go ahead with the case. तो इसी तरीके से communities में क्या होता है कि जैसे कि like I said कि different कैटेगरी के जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस अपने कैटेगरी के लोगों को सर्च करते हैं एंड देन दे ट्राई टू कनेक्ट विद देम. ठीक है ना? से फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हो आज, तो टुडे यू ऑल आर स्टूडेंट्स हियर, राइट? बट से टुमारो इफ यू वांट टू ग्रो and say if you want to search a job, या फिर maybe you start your own business and you want people to connect with you, you want employees, you want staff to run your business, तो आप क्या करोगे? Have you ever thought कि अगर आपको business start करना है तो where will you get the employees, the human resource कहाँ से आएगा? तो आप क्या करो ना students, right from today you might have heard about LinkedIn. I'm sure you all must have heard about LinkedIn. If not, you just go check out on Google LinkedIn क्या होता है. LinkedIn is a platform जहाँ पर आप सारे कैटेगरी के क्या कहते हैं उसे, जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऑल द स्टूडेंट्स जो आज स्टूडेंट्स हैं और जो फ्यूचर में चल के प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, some will graduate, some will do their masters, आगे चल के दे विल सर्च जॉब्स. तो जॉब सर्च में आप क्या करोगे? जॉब सर्च में आप यू कैन नॉट गो, मतलब आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे अपने जो एरिया के जो बिजनेसमैन है जिनके डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मिल रही है. तो यू विल नॉट लिमिट योर सेल्फ ओनली टू द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर in your locality. You would like to know more about what is going on in the world around, और कौन से ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल है जो आपको हायर करने की पोजीशन में है, आपको अच्छी सैलरीज दे सकते हैं, आपको अच्छे पर्क्स दे सकते हैं. तो what will you do in that case? You will have to register yourself on LinkedIn. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज गो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जाके अपना LinkedIn प्रोफाइल क्रिएट करो and then try to connect with people who are like whatever profession you are in, they are into that kind of similar kind of business, and with whom you want to connect. Even if you don't want to go for a job, you can, and even if you want to start your business, you will obviously need people to work with you, right? So even in that case, you should go and register yourself on LinkedIn, open your account on LinkedIn, and start getting connected with people who are on LinkedIn. Okay, so this is a humble request for those students who have not yet registered themselves on LinkedIn. Please go ahead, go register yourself. You will find a lot of business opportunities. Also, you will find a lot of job opportunities if you are looking for job. You might think कि अभी तो मैं student हूँ, why do I need a LinkedIn profile? अभी से क्या करना है मुझे? बट अभी से अगर आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट अ डायमेंशन, मतलब एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको
क्या क्या आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, जो भी आप कोर्सेज कर लोगे उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। करंटली आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि वंस यू आर डन विथ योर एजुकेशन उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी होगी, ओनली व्हेन यू एक्सप्लोर। एंड एक्सप्लोर कैसे करोगे, बाय सच यू नो काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जहां पर जैसे से फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है। तो प्लीज गो स्टूडेंट्स, प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन। इट इज अ वेरी 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 फ्रूटफुल ऐप। इवन देयर इज अ वेब लिंक, तो वहाँ वेबसाइट भी है इनका जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर गो डाउनलोड दी ऐप and register yourself. I'm not promoting LinkedIn in any way. I don't get paid for it, but I feel like it is a very good platform. Even currently, जब मैं अपने business अपने office में I was looking for searching for people to work with me. I connected people on LinkedIn, and I think मैं अगर personally if I would have gone in the market and मैं अगर search करती तो I would have not got such great people जिनसे मैं आज connected हूँ. So LinkedIn obviously is a very very good platform. You go ahead, register yourself on LinkedIn, and you just see the results. Now the next category in customer relationship is co-creation. What is co-creation? अब आप सोचोगे कि को क्रिएशन क्या होता है। क्रिएशन तो सुना है हमने, हम वी ऑल आर क्रीचर्स, क्रिएशन तो हमें गॉड ने क्रिएट किया है। बट को क्रिएशन इज व्हेन यू मतलब कि जब आप जो आपका कस्टमर है उसके साथ बैठ के और चीजों को डिजाइन करते हो, लाइक व्हाट वी कॉल इट एज कस्टमर स्पेसिफिक नीड्स को केटर करते हो। जैसे कि कोई कंपनी है जिसको एक ट्रक मैन्युफैक्चर करनी है, और वो ट्रक मैन्युफैक्चर इस तरीके से करनी है कि उसके अंदर बहुत सारी वो ट्रांसपोर्ट कर सके, दूसरी छोटी गाड़ियां जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो दिस इज नॉट एवरीवेयर, हर जगह पे तो आपको ऐसी गाड़ियां नहीं मिलेगी, ऐसे बिग कंटेनर ट्रक्स नहीं मिलेंगे। तो जो कस्टमर है उनके साथ अगर आप बैठ के उनकी क्या कौन सी टाइप की व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट होनी है, उसके क्या डायमेंशंस होंगे, उसकी क्या मेजरमेंट्स होगी, अकॉर्डिंगली आप उनको अगर एक कंटेनर ट्रक डिजाइन करके दोगे, तो दिस इज कॉल्ड को क्रिएशन। को क्रिएशन में क्या होता है, यू सिट विद द कस्टमर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर नीड्स आर, what kind of designs they are looking for, and accordingly आप उसको create कर सकते हो। one of the very popular example आजकल है जो है YouTube पे भी बहुत सारा content create होता है। the content creators are the customers, मतलब जो YouTube की services use कर रहा है, जिसको हम content creator आजकल कहते हैं, तो they are creating content for the audience, but for whom? For YouTube. The customer is designing the content and selling it to whom? YouTube, and YouTube is in turn paying for the services they do. So this is how co-creation also helps in developing good relations with the customer, because एकदम customer को जैसा चाहिए exactly वैसा ही आप दे रहे हो, not even 19-20 कहाँ थोड़ा ऊपर नीचे नहीं, exactly what they want. तो इससे भी customers के साथ relations ठीक होता है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी जो अब नेक्स्ट ब्लॉक जो है, जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया क्या था, कस्टमर सेगमेंट्स। सेकंड हमने क्या किया, कस्टमर रिलेशनशिप्स। जो थर्ड कैटेगरी है इसमें वो आती है चैनल्स। चैनल्स इज बेसिकली व्हाट, हाउ यू रीच द कस्टमर्स। एक तरीका वो सारे तरीके जिससे आप कस्टमर के नजदीक जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड चैनल्स। तो चैनल्स में क्या होता है ना, लाइक से फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, देन हाउ विल आई रीच माय कस्टमर्स, मैं कस्टमर्स को कैसे अप्रोच कर सकती हूँ, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, चैनल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग पिलोज, ओके, सो पिलो मैन्युफैक्चरर हूँ मैं, तो मैं कैसे सेल करूंगी अपने गुड्स को, मे बी आई हैव अ वेबसाइट ऑफ माई ओन। मैं अपने कंपनी में एक वेबसाइट डेवलपर को बुला के एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन कर दूंगी, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें सारे सब कैटेगरीज होंगे, फिर उसके प्राइजेस होंगे, फिर उसकी क्वालिटी होगी, है ना। तो ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ आई एम डिस्प्लेइंग एवरीथिंग कि आपको क्या चाहिए, यू गो एंड सर्च एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग एट योर होम, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, व्हेन आई हैव ओन चैनल्स। ओन चैनल्स इज व्हाट, व्हेन द कंपनी इज ओनर ऑफ द चैनल्स, he is owning the channels, okay, so this is called own channels, okay. I'll give you more examples about this.
Like say for example, obviously I'll have my website wherein you will go and the customers will go and buy the products, or maybe I will provide with certain services जो कि again अपने वेबसाइट पे मैं डिस्प्ले करूंगी कि आई एम एन एडवोकेट, आई प्रोवाइड सच सर्विसेज। तो फिर कोई भी कस्टमर होगा वो मेरे पास आएगा, दे विल अप्रोच मी यूजिंग व्यूइंग द वेबसाइट कि मैं क्या क्या करती हूँ, मेरे क्या क्वालिफिकेशंस है ना। सिमिलरली मे बी आई हैव एन इंटरनल टीम, अपनी एक टीम लगा दूंगी कि जाओ आप सर्च करो कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनको मेरी सर्विसेज चाहिए, है ना। तो दिस इज अगेन व्हाट, जब मेरे पास अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चैनल्स होंगे उसको मैं कहूंगी ओन्ड चैनल्स, जो मेरे खुद के चैनल्स होंगे जिसको यूज करके आई विल ट्राई टू अट्रैक्ट ऑल द कस्टमर्स। दिस इज कॉल्ड ओन्ड चैनल्स। ओके, another is partner channels। मतलब अगर if I briefly categorize channels को दो तरीके से categorize कर सकते हैं। first is owned channels and second one is partner channels। okay, तो partner channels क्या होता है? partner channels में क्या होता है ना, I will try to connect with certain partners in the similar industry। for example कि जैसे Facebook पे marketing होती है, ठीक है ना। तो जब फेसबुक मार्केटिंग मैं फेसबुक को अप्रोच करूंगी कि मेरी जो है ना प्रोडक्ट्स को आप मार्केट करो, तो फेसबुक इज नॉट समथिंग दैट आई एम द ओनर ऑफ, इट इज द थर्ड पार्टी हु इज द ओनर ऑफ द फेसबुक। आई एम अप्रोचिंग फेसबुक to market my products। okay, so this is what when the third party is marketing my products, they are called as third party marketing channels। okay, similarly अगर मैं अपना प्रोडक्ट Amazon पे लिस्ट करा दूं, Amazon is something that is not owned by me, okay, but this is third party, बाहर से कोई मेरा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे आजकल मार्केटिंग पेजेस बने हुए हैं। यू गो देयर, यू बाय द प्रोडक्ट्स, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में उसमें होगा कि इतने का प्राइस का है। यू गो देयर, यू डायरेक्टली कनेक्ट द बिजनेस ओनर। और सिमिलरली आप जैसे कि आपने सुना होगा रेडियो पे भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, तो आप थ्रू रेडियो आप कस्टमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सिमिलरली न्यूज़पेपर्स में भी आप बहुत सारी एड्स देके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। यूट्यूब अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, वहां पर आप जैसे ही लाइक आई सेड आप कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो एंड इमीडिएटली आपको यूट्यूब पे उसी के एड्स दिखेंगे कि ओ दिस इज द गोइंग ऑन डिस्काउंट, गो गेट इट, बाय इट, इतना सस्ता मिल रहा है, टेक इट टुडे इटसेल्फ, 5 मिनट्स का ऑफर है, जस्ट गो एंड बाय इट। So these are all what? These are the channels which are not inside the organization. These are external to the organization. कंपनी के बाहर, मतलब कि जो बिजनेस है इसके दे आर नॉट द ओनर्स, ये सारे चैनल्स के ओनर्स नहीं है वो, लेकिन एक्सटर्नली क्या हो रहा है कि हम उनको अप्रोच कर रहे हैं एंड देन वी आर ट्राइंग टू sell our products using these platforms. Obviously if you talk about the cost, तो जब हम एक्सटर्नल पार्टी से अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं तो द कॉस्ट इज ह्यूज compared to if we own our own channels, ठीक है ना। तो if I go and approach the external channels, the cost involved would be huge। मेरा बहुत सारा जो मार्जिन है वो एडवर्टाइजमेंट में कट जाएगा compared to what I if in case if I have my own channel, I'll have huge margins compared to what I will be if what I will be paying for the external party, ठीक है ना। So this is how channels are described in this in this canvas. The fourth block in this canvas is revenue streams. So now what do you think? If you want to do a business, ultimately आपका क्या purpose है? Whenever you do a business, आपको क्या चाहिए? You need revenue, right? आपके business में ultimate goal जो है आपको पैसा कमाना है, otherwise तो आप business करोगे ही नहीं, है ना। तो जो मोटिव है, जो बिजनेस को हमें रेवेन्यूज अर्न करने हैं, उसके लिए अगेन रेवेन्यूज को क्या किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यूज और एक है रिकरिंग रेवेन्यूज। व्हाट आर ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यूज? ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यूज वो होते हैं कि जो वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है, एक ही बार हम डीलर से मिलते हैं, उससे हम जो कस्टमर है उससे हम एक ही बार कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड देन एक ही बार में हम उन्हें पेमेंट करते हैं एंड देन द ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। वो रेकरिंग नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीवी खरीदना है, तो आप टीवी तो रोज रोज नहीं खरीदोगे,
तो आप एक ही बार डीलर के पास जाओगे, आप उनसे एक ही बार में टीवी खरीद के आ जाओगे एंड देन द ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। आप जब अगली बार जाओगे मे बी आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 7 years, तो इट इज अ लॉन्ग गैप। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू जनरेट हो गया आपके बिजनेस के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि whether my product which I am selling is going to give me a transaction revenue or it is going to give me a recurring revenue. Recurring revenue क्या होता है, when you are constantly selling goods, मतलब कि for example if I am a I am into soap business और मैं सोप बनाती हूँ, आई एम अ सोप मैन्युफैक्चरर, तो मैं हमेशा क्या सोचूंगी कि कस्टमर बार बार मेरे पास आए, मुझसे बार बार वही सोप खरीदने के लिए आए। तो दैट विल बी व्हाट, रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू, बार बार मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। एवरी 1 month के बाद कस्टमर आएगा, मुझसे वही सोप लेके चला जाएगा। तो दैट इज व्हाट रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे, ठीक है ना। तो अगेन द रेवेन्यू इज डिवाइडेड इनटू ट्रांजैक्शन रेवेन्यू एंड रिकरिंग रेवेन्यू। दिस इज हाउ ब्रॉडली द रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर डिवाइडेड। अगेन आपके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर यू नो वट एवर गुड्स, आपका जो बिजनेस प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर, तो मैं गुड्स बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सकती हूँ। इन केस आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि मैं हूँ, आई एम अ एडवोकेट, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो मैं अपने कस्टमर्स को सर्विस, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ एंड आई जनरेट रेवेन्यू। सिमिलरली अगर कोई ब्रोकरेज कंपनी है, मतलब कि कोई ब्रोकर है, वो क्या करेगा, आपको से फॉर एग्जांपल कोई रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, ब्रोकर को अप्रोच करोगे, आप यू नो यू विल पे सर्टेन अमाउंट टू द ब्रोकर। तो दीज आर द डिफरेंट streams of revenue generation. Next, I would talk about the key activities. What are the key activities? Key activities वो होती है जो आप कोई भी बिजनेस रन करने के लिए जो एक्टिविटीज आप करते हो उसे हम कहेंगे की एक्टिविटीज। से फॉर एग्जांपल अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर, तो सबसे इंपॉर्टेंट की एक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्शन। मेरा प्रोडक्शन कितना अच्छा होता है, कितने यू नो कैपेसिटी पे होता है, मेरा डिजाइनिंग कितना अच्छा होता है, मेरी पैकेजिंग कितनी अच्छी होती है। तो दीज आर ऑल द की एक्टिविटीज विच एवरी बिजनेस हु इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारी चीजें उन्हें ध्यान रखनी होती है व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, लाइक व्हाट प्रोडक्ट्स यू प्रोड्यूस। देन obviously when you produce certain goods there will be a lot of problems that you will be facing, right? तो जब भी आप बिजनेस करते हो इन जनरल, तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, उसको भी आपको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज अगेन अ की एक्टिविटी विच यू विल बी facing, you know, the problems which you will be facing, you have to resolve it. So this is another key activity. Next is networking. Now networking is what, आप कस्टमर्स को कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे आप उनको रिटेन करोगे, किस तरीके से आप उन्हें अप्रोच करोगे। तो these are all the key activities जो कोई भी बिजनेस, now you know key activities cannot be standardized, मतलब कि आप कोई भी you know these are based on the business that you do, आपके जो भी बिजनेसेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी की एक्टिविटीज डिसाइडेड होगी, ठीक है ना। कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा कि दीज आर द की एक्टिविटीज व्हिच यू विल बी which you need to take care of. For every business there will be different key activities which you need to take care of. Okay, next is the key resources. Now if I talk about key resources, key resources क्या होते हैं, मतलब कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे। रिसोर्सेस मतलब क्या, बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे, राइट। whenever you do a business you need different inputs in your business. say for example कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारा एम्प्लॉइज का नीड होगा, लेबर क्लास भी चाहिए होगी टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट्स, और इफ यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री यू विल नीड लॉट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज, जो प्रोफेशनल्स हो गए उनकी नीड चाहिए होगी। तो दीज आर लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, और इसको रिटेन करना, मेंटेन करना एक अपने आप में चैलेंज होता है जो एवरी बिजनेस पर्सन को फेस करना पड़ता है। द सेकेंड थिंग इज finance arrange करना है every time, because you know you whenever you run a business the most you know challenging thing is to arrange for the finance. आप अपना पूरा पैसा लगा भी देते हो तो immediate results नहीं मिलेंगे आपको। You need someone to invest into your business, you need lot of investors जो आपके business में invest करेंगे and then later on उसमें आपको बहुत सारे revenues generate होंगे। The third one is intellectual. What is intellectual? आप कोई भी चीज अपनी प्रोड्यूस करते हो,
आप कोई भी चीज अपना गुड्स प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज देते हो, यू नीड टू यू नीड योर गुडविल टू बी क्रिएटेड, यू नीड कि आपके प्रोडक्ट्स का कोई ब्रांड बने, you need every people to know your brand. Okay, so that is what is called intellectual. अब फिजिकल में क्या आता है, लास्ट वन विच इज फिजिकल, फिजिकल में क्या आता है कि आपको जैसे गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं तो यू विल नीड बिल्डिंग, यू विल नीड इन्वेंट्री, यू विल नीड मशीनरी, यू विल नीड रॉ मटेरियल जिसको आप प्रोड्यूस करते हो, एंड देन व्हाट यू डू, यू विल फाइनली क्रिएट अ प्रोडक्ट जिसको कहते हैं key resources. What are the key resources? Should I repeat again? Once I will repeat. Okay, human resource एक होता है, then होता है finance जो आपको चाहिए होता है, intellectual जो आपको अपनी brand building करनी होती है, goodwill building करनी होती है, and last one is the physical जो tangible equipments आपके पास होते हैं, tangible assets जिसको हम कहते हैं. तो that two are required when you do the business canvas analysis. The seventh point in this is key partners. Now, who are the key partners? जब भी आप business करोगे, you will always be associated with lot of people out there. You are not doing business in isolation. आप अकेले business नहीं कर रहे हो. You have to get associated with lot of people when doing a business. So, if I talk about key partners, who are the key partners in your business? Say, for example, strategic alliance. Strategic alliance क्या होती है? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैटेजिक अलायंस का अगर मैं एग्जांपल दूं, आई एम से अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स, ठीक है ना, एंड नाउ आई नीड टायर्स अपना कार बनाने के लिए, आई विल नीड टायर्स, आई विल नीड नट्स, आई विल नीड बोल्ट्स, आई विल नीड जॉब वर्क टू बी डन ऑन द एंटायर असेंबलिंग एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी जब मैं कार मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. तो व्हेन आई गेट टेकन अलायंस विद tire industry, agar I am a car manufacturer or I get associated, I get the work done from a tire industry के साथ मैं associate हो जाती हूँ, उनके साथ जुड़ जाती हूँ, हम revenues share कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, strategic alliance. इसका मतलब क्या है, हम एक associate हो रहे हैं, किसी के साथ हम जुड़ रहे हैं अपना, मतलब they are not competitors. Obviously जो कार मैन्युफैक्चरर है वो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है इस केस में. They are getting associated with whom? With the tire manufacturers. Tire manufacturers से nut bolt manufacture करने वाले होते हैं, nuts and bolts. उनके साथ हम अपना strategic alliance बनाते हैं, and then we share revenues together. हम अपने resources एक दूसरे के साथ share करके and we move together ahead ताकि हमारे revenues huge हो. That is called strategic alliance. The next point here is competitors. कभी-कभी हम क्या होता है ना, competitors के साथ partnership कर लेते हैं. Say for example कि अगर मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो और देयर इज समवन एल्स हु इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द सॉफ्ट ड्रिंक, से कोको कोला एंड पेप्सी बोथ आर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स. अगर वो दोनों जुड़ जाते हैं और वो दोनों एक बड़ी कंपनी बना लेते हैं, एक अमलगमेट जिसको हम कहते हैं कि एक अमलगमेशन हो गया उनका, तो देन व्हाट द रेवेन्यूज विल बी ह्यूज. जो मार्केट शेयर इसके एक कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री के पास था, एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर के पास था, वो दोनों एक ह्यूज मार्केट मिल जाएगा, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे. तो दिस इज हाउ की पार्टनर्स के मतलब कि जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ भी हम एट टाइम्स अपना एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि हम ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें. नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर्स. जॉइंट वेंचर्स क्या होता है, देयर आर टू सिमिलर बिजनेसेस व्हिच कम टुगेदर, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो एक साथ आते हैं एंड देन दे डिसॉल्व. से फॉर एग्जांपल मेरा पर्पस है कि एक बिल्डिंग बनानी है, and I am a builder and there is some other builder. We both come together, we create a joint venture, we build the building and then the joint venture is dissolved. Uske baad we are not into permanent business arrangements, we are just into an arrangement jahan par ek chota sa kaam hai jo hum milke karenge and then after that the joint venture gets dissolved. तो ऐसे भी हम अपने जो बिजनेस को प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए हम जॉइंट वेंचर्स में भी आ सकते हैं किसी के साथ. एंड नेक्स्ट इज द बायर सप्लायर रिलेशनशिप. बायर सप्लायर रिलेशनशिप इज अगेन व्हाट, द कस्टमर रिलेशनशिप जो हम वी ट्राई टू डेवलप सो दैट आवर रेवेन्यूज एंड आवर कस्टमर बेस रिमेन्स इंटैक्ट, यहाँ वहाँ कस्टमर नहीं जाए इसीलिए. तो दे आर ऑल द की पार्टनर्स इन आवर बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द 8th point, the 8th structure is about cost. अब कोई भी बिजनेस हम करते हैं
we want the revenues to be huge and we want the cost to be, we want to cut down the cost को हम minimum रखना चाहते हैं and revenues को हम हमेशा high रखना चाहते हैं. If you see this picture, this talks a lot. Yeah, this one. If you see this picture, यहाँ पर क्या कर रहे हैं सारे लोग, उसे खींचने की, रेवेन्यूज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं एंड कॉस्ट को नीचे से, इफ यू सी, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कट डाउन द कॉस्ट एंड इंक्रीज द रेवेन्यू. तो कोई भी बिजनेस टुडे, द बिजनेस इज ऑल अबाउट, इतना कंपटीशन आ गया है इन द मार्केट, तो आपको कॉस्ट कटिंग तो करनी ही है, अदरवाइज आपका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता है. तो करंटली what the market looks like is not that simple. It is very complex. Market is not that simple. तो आप क्या करते हो ना, जब भी मार्केट में एंटर करते हो, there is a huge competition already. तो how would you survive in the market? By reducing your cost. आप जितना कॉस्ट रिड्यूस करोगे उतना आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे. आप कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हो? जैसे कि आप ने पीछे देखा होगा कि आप अलायंस कर लो किसी के साथ, या कोई जॉइंट वेंचर कर लो, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर लो, so that you can earn more profits. ठीक है ना? The last one in this block is value proposition. Now what is value proposition? आप सबने सुना होगा value proposition, USP, कि if I say कि मेरी USP है कि मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ, that is my USP. USP is what, the core competence. core competence मतलब कि आप कौन सी चीज में आपने एक्सपर्टीज करनी, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको, मतलब कि है ना, जिसके कारण आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में. तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं नेस्ले की बात करूं, तो नेस्ले का कोर कॉम्पिटेंस या वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा? नेस्ले का होगा मैगी. व्हाई? बिकॉज मैगी टुडे इज द यूएसपी ऑफ नेस्ले. इफ आई टॉक अबाउट रामदेव बाबा जी, जो हमें योगा सिखाते हैं एवरी मॉर्निंग, ड्यूरिंग कोविड सेशंस, हमने देखा होगा कोविड में एवरीडे मॉर्निंग न्यूज चैनल में आते थे रामदेव बाबा. तो द मोमेंट आई टॉक अबाउट रामदेव बाबा, मेरे दिमाग में क्या चीज आती है? योगा. तो योगा इज द यूएसपी ऑफ रामदेव जी, राइट? सो वैल्यू प्रपोजिशन इज व्हाट इज, इट इज द वैल्यू दैट यू ड्राइव. मतलब कि कोई भी आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में अगर सेल कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, तो उससे कस्टमर के माइंड में आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो. तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू प्रपोजिशन. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो, वैल्यू प्रपोजिशन में क्या होता है कि द गेन्स दैट यू आर ट्राइंग टू गिव टू द कस्टमर, आप कितना ज्यादा आप अपने कस्टमर्स को गेन दे रहे हो और उनसे कितना पेन ले रहे हो, इसके बेसिस पे आपका वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड होता है. कि द मोर एंड मोर गुड सर्विसेज यू गिव, एंड जितना भी उनके पास उनके जो भी ग्रीवेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आप कितना टेकअप कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू प्रपोजिशन. Okay, so these are the 9 points that we have discussed so far. I'll just show you all the 9 points that we have discussed. Yeah. Yes. तो हमने ये सारे 9 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किए. कौन से? एक कस्टमर सेगमेंट, दूसरा की एक्टिविटीज जो हम बिजनेस में करते हैं, तीसरा हमारे की रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे की रिसोर्सेज है. सिमिलरली वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है? जो हमारी यूएसपी होती है, जो हम ओवर द टाइम हम एक अपना वैल्यू क्रिएट कर देते हैं. आज अगर इफ आई टॉक अबाउट निरमा, इफ आई से निरमा, इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आएगा? इट इज अ पाउडर, वॉशिंग पाउडर जो हम यूज करते थे लॉन्ग बैक, आज भी वो मार्केट में इट इज हैविंग अ गुड स्टेक. तो वैल्यू प्रपोजिशन, बाय द नेम इटसेल्फ आई एम एबल टू फाइंड आउट कि उसके अंदर वो क्या चीज सेल करता है, राइट? देन नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज मतलब कि हम अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप करते हैं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स, लाइक हम अपने चैनल्स क्या है, कैसे कैसे हम अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. दीज आर व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. नेक्स्ट इज की पार्टनर्स. की पार्टनर्स क्या होते हैं कि जिनके साथ हम अपना पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. देन नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम, डिफरेंट रेवेन्यूज जहां से हमारे इनकम जनरेट होता है. नेक्स्ट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर. कॉस्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट कि कैसे हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं.
एंड कैसे हम अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर. ओके, I hope I have made it clear. The canvas is pretty much clear. It's my pleasure to propose a vote of thanks. I want to express my sincere gratitude Advocate Bharti Naulani, who spared precious time from her busy schedules to grace these workshops and enlighten all of us with business models with key factors. Once again, I thanks to all of you. With the prior permission of principal sirs, I declare this workshop is over. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity to present a small presentation on this business canvas model. I hope I've made things pretty clear, and I hope students are able to take benefit of this session. Thank you so much, sir.